Good morning, students. Today we are going to start our fifth chapter, that is letter from a father to his daughter. Pandit Jawaharlal Nehru was our first prime minister. While he was in prison in Allahabad, he wrote a number of letters to his daughter Indira Gandhi, who was a little 10-year-old girl studying in Mysore. A part of one such letter is given below. कहते जब पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, उनको एक बार मतलब सज़ा हो गई थी, तो इलाहाबाद जेल में थे वो, और वहाँ से वो अपनी बेटी, जो कि इंदिरा गांधी उनकी बेटी थी, तब उस टाइम वो 10 साल की थी, तो उनको वहाँ से लेटर लिखते हैं. क्या वो लेटर होती है, मंसूर में वो पढ़ रही होती है उस टाइम, तो वो अपनी बेटी को लेटर्स के थ्रू बातें करते हैं उनसे. बहुत सी लेटर्स होती हैं, लेकिन उनमें से एक लेटर है जो अभी हमारा ये चैप्टर है, इसमें उनकी एक लेटर को पब्लिश किया गया. क्लियर. Allahabad, November 1929. Dear Indra, when you and I are together, you often ask me questions about many things and I try to answer them. Now that you are at Missouri and I am in Allahabad, we can't have these talks. I am therefore going to write you from the time to time short accounts of the story of our earth. कहता जब हम दोनों साथ में रहते थे तो कितने ज़्यादा क्वेश्चंस तू मेरे से पूछती थी और मैं उनका आंसर करता था, लेकिन अब क्योंकि तुम मंसूर में हो और मैं इलाहाबाद में हूँ, तो मैं तुम्हें इस अर्थ के बारे में, इस धरती के बारे में कुछ छोटा सा बताने वाला हूँ इस लेटर के थ्रू, जो कि तुम्हें बल्कि तुम्हारी नॉलेज को बढ़ाने के लिए. एंड द मैनी कंट्रीज great and small into which it is divided. You have read a little about English history and Indian history, but England is only a little island and India, through a big country, is only a small part of the earth's surface. If we want to know something about the story of this world of the earth, we must think of all the countries and all the people who have inhabited it, and not merely of one little country where we may have been born. कहता जो हमारी अर्थ है ये कई छोटे छोटे देशों में और बड़े बड़े देशों में डिवाइड की हुई है, और उन्हीं में से जैसे इंग्लैंड है ये एक छोटा सा आइलैंड है, इसी तरह से जैसे इंडिया है ये बहुत एक बिग कंट्री है. तो इस तरह से कहता जितने भी हम ये लिविंग थिंग्स हैं, मतलब जितने भी ह्यूमन बींग्स हम इस धरती पर रह रहे हैं, चाहे हम इंडियंस हैं चाहे वो किसी और कंट्री के हैं, वो सभी हम आपस में बल्कि उन सभी के बारे में तुम सोचना. आने वाला टाइम में तुम इनकी मतलब इनकी जो हिस्ट्री है, जैसे इंडिया की हिस्ट्री है, अर्थ की हिस्ट्री है, सब के बारे में पढ़ोगे तो आपको इन सब के मतलब नॉलेज होगी. आई एम अफ्रेड I can tell you very little in this letter of mine, but that little I hope will interest you and make you think of the whole world as a whole and of the other people in it as our brothers and sisters. When you grow up, you will read about the story of the earth and her people in fat books, and you will find it more interesting than any other story or novel that you may have read. कहता मैं मतलब कि मेरे को जो डर लग रहा है कि मैं बहुत ही इस लेटर के थ्रू बहुत ही छोटा सा बता पाऊँगा तुम्हें, लेकिन तुम खुद से तुम्हारा इंटरेस्ट बनेगा धरती के बारे में जानने का, और तुम खुद से मतलब कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करोगी, तुम्हें खुद से पता चलेगा कि जितने भी हम पूरी दुनिया के हम लोग हैं, हम सभी ब्रदर सिस्टर हैं आपस में. तो तुम मतलब कि जब थोड़ी और बड़ी होगी तो मोटी मोटी बुक्स में पढ़ोगी कि कैसी हिस्ट्री थी हमारी अर्थ की, अलग अलग कंट्रीज़ की क्या हिस्ट्री थी. You know, of course, that our earth is very old, millions and millions of years old, and a long time there were no men or women living on it. Before men came, there were only animals, and before the animals, there was a time when no kind of life existed on the earth. It is difficult to imagine this world of ours, which is so full today of all kinds of animals, men, and to be without them. But scientists and those who have studied and thought a great deal about these matters tell us there was a time when the earth was too hot for any living beings to live on it. And if we read their books and study the rocks and fossils, the remains of the old animals, we can ourselves see that this must have been
सो कहता मतलब कि जैसे अर्थ है जे मतलब कि जो धरती है जो हमारी बहुत बहुत ज़्यादा सालों पुरानी, मिलियंस एंड मिलियंस ईयर पुरानी है। एक टाइम तब था जब हमारी इस धरती पे कोई बंदा नहीं था, कोई वुमेन नहीं थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन उसके पहले जानवर रहते थे। और जानवरों के पहले भी जो हमारी धरती है उसके ऊपर कुछ भी नहीं था, बिल्कुल खाली थी। जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो हमें बताते हैं कि धरती जो मिलियंस एंड मिलियंस ईयर पहले बिल्कुल इतनी ज़्यादा हॉट होती थी, गर्म होती थी कि उसके ऊपर कोई भी लिविंग बीइंग, कोई भी जिंदा इंसान या जानवर या कीड़े मकोड़े कुछ भी रह नहीं सकते थे, क्योंकि धरती बहुत ही ज़्यादा गर्म थी। क्लियर। तो जो रॉक्स एंड फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, जो पुरानी चीज़ें, पुरानी मतलब के ओल्ड एनिमल्स, पुराने जैसे एनिमल्स जंगलों में मर जाते हैं तो उनके जो कंकाल होते हैं उनसे पता लगवाना कि कितना पुराना है ये। क्लियर। तो ये सब उन्होंने अपनी डॉटर को लेटर में लिखा कि ताकि वो उसकी मतलब कि इंटरेस्ट बढ़े इन सब चीज़ों में, और वो ये सब चीज़ों को इंटरेस्ट में लेकर अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स वगैरह पढ़े। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट इज़ ग्लॉसरी। डू द ग्लॉसरी इन योर नोटबुक्स। ग्लॉसरी आपको मैंने बताया ही है कैसे करनी है। इसका वर्ड का सिर्फ मीनिंग लिखना है हमने। अगर कोई मीनिंग बड़ा है तो उसको हम शॉर्ट करेंगे, अगर 2 मीनिंग है तो सिर्फ एक लिखना जो आपको इजी लगे, और इसके सेंटेंस हमने नहीं लिखने हैं। क्लियर। एंड द नेक्स्ट इज पिक अ टिक और पुट अ टिक और क्रॉस फॉर द ईच सेंटेंस। राइट रॉन्ग बताने हैं हमने। द फर्स्ट वन इज पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। करेक्ट। England is only a little island. Correct. Before the animals, no kind of life existed on the earth. Correct. Indira Gandhi was studying in Allahabad when Nehru wrote her this letter. Cross. Wrong. There was a time when the earth was too hot to live on it. Correct. The next one is choose the correct option to answer the following questions. The first one is who wrote the letter and to whom? The answer is Nehru wrote the letter to Indira. Second is who lived on the earth before human beings? Answer is animals. Third is what is an island? Answer is a mass of land surrounded by water. Fourth is what did the scientists study about the earth? The answer is millions of years ago the earth was too hot to live on it. Clear? The next is complete the sentences. The first one is our earth is million of years old. The earth is divided into many countries. India is only a small part of earth's surface. Rocks and fossils tell us about the earth. Before the animals there was a time when no kind of life existed on the earth. Clear? नेक्स्ट हमारे पास है वोकेबलरी एक्टिविटीज़। इसमें हमने ये देखना है वी ऑफन कंपेयर टू थिंग्स बाय यूजिंग एज। हम 2 चीज़ों को कंपेयर करने जब करते हैं तो एज यूज़ करते हैं। जैसे ही इज़ एज गुड एज गोल्ड, शी इज़ एज जेंटल एज लैम्ब। इसी तरह से बॉक्स में हमें वर्ड दिए हुए हैं और आगे जो एक्सरसाइज दी हुई है हमने जो वर्ड फिल करने हैं इसमें। क्लियर। द फर्स्ट वन इज़ एज हॉट एज फायर, as red as blood, as soft as silk, as black as coal, as green as grass, as light as feather, as busy as bee, as brave as lion, as greedy as wolf, as faithful as dog. Clear? The next is one word in each sentence is spelled wrongly. Underline the incorrect word and correct it. कहता है इस सेंटेंस में एक वर्ड ऐसा है जिसके स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं, आपने उस वर्ड को पहले अंडरलाइन करना है, फिर आप